हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे फिजियोलॉजी पर। सिंस योर एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, सो स्टडी हार्ड, concentrate on your studies, right? So let's start with the today's video. So the topic for today is synapse. So I hope you must know what is synapse. So synapse is a junction between two neurons. दो neurons के बीच के junction को हम synapse बोलते हैं. So here the axon of one cell terminates on the dendrite or some other portion of the another cell to make the synapse. तो एक न्यूरॉन की एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पे या फिर दूसरे न्यूरॉन के कोई और सेल के पार्ट पे जब टर्मिनेट करती है, so the junction formed between these two neurons is known as synapse. So here two neurons are involved. So the neurons which sends the message, जो मैसेज लेके आ रही है, जो मैसेज दे रही है, दैट न्यूरॉन इज नोन एज प्रीसाइनेप्टिक, राइट? So neuron which sends the message is known as presynaptic neuron, and the neuron which receives the message, जो मैसेज को रिसीव कर रही है, that is known as the postsynaptic neuron. So are we clear with this? So synapse क्या है? सिंपल सी चीज है. It is a junction between two neurons. एक सेल का एक्सॉन दूसरे सेल के डेंड्राइट पे या फिर कोई और पार्ट पे टर्मिनेट करता है, जंक्शन बनाता है, which is known as synapse. दो न्यूरॉन्स इन्वॉल्व है. The one giving the message is presynaptic neuron and the other receiving the message is known as postsynaptic neuron. Now let's talk about the classification of synapse. अब जो synapse की classification है वो दो तरीके से हम कर सकते हैं. The one is anatomical classification and the other is physiological classification. So what is anatomical classification? Anatomy involved है, मतलब here we are classifying the synapse according to the part of neurons involved. कौन से न्यूरॉन का पार्ट इन्वॉल्व है साइनेप्स बनाने में, उस हिसाब से हमने साइनेप्स को क्लासिफाई कर दिया. So these are exodendritic synapse, most common form of synapse, exosomatic, exoaxonal or dendrodendritic synapse. So there are four types of synapse depending upon the anatomy: exodendritic, exosomatic, exoaxonal and dendrodendritic. Next is physiological classification. ये क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं बेस्ड ऑन देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और द नेचर ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ. तो इट इज केमिकल साइनेप्स और द इलेक्ट्रिकल. अगर कोई न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व हो रहा है, कोई केमिकल एजेंट इन्वॉल्व हो रहा है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल, वी कॉल इट एज केमिकल साइनेप्स. अगर कोई इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट है, वोल्टेज गेटेड चैनल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल साइनेप्स. नाउ लेट अस सी देम इन डिटेल. So first is anatomical classification. तो exodendritic synapse, अब नाम से ही पता लग रहा है एक सेल का एक्सॉन दूसरे सेल का डेंड्राइट. So you can also see in the diagram, although diagram is not very good, but still you can understand कि ये जो है हमारी फर्स्ट न्यूरॉन है, प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन है, ये इसका एक्सॉन है. So this axon is terminating on the dendrites of the other. ठीक है, इसलिए इसको नाम दे दिया हमने एक्सोडेंड्राइटिक. इस सेल का एक्सॉन दूसरे सेल के डेंड्राइट्स के ऊपर टर्मिनेट कर रहा है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस. नाउ दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द सिनेप्स, एंड ये हमें सारे मोटर न्यूरॉन्स है जितने भी स्पाइनल कॉर्ड में वहां पे देखने को जाता है. एक्साइटेटरी सिनेप्सेस हो रहे हैं, क्लाइंबिंग फाइबर्स इन सेरिबेलम. So we can see this type of synapse in all these type of transmission. Next is exosomatic. अब नाम से क्या पता लग रहा है, एक सेल का एक्सॉन दूसरे सेल की बॉडी, सोमा, सेल बॉडी या फिर सोमा है ना, तो दूसरे सेल की बॉडी. तो डायग्राम में आप देखो, इस सेल का एक्सॉन इज टर्मिनेटिंग ऑन द सेल बॉडी ऑफ द अदर न्यूरॉन, सो इट इज एक्सोसोमेटिक. It is seen in the motor neuron, cerebellum and the autonomic ganglia. Now next we come to third type of anatomical classification, that is एक्सोएक्सोनल साइनेप्स. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों सेल के एक्सॉन्स के बीच में कनेक्शन बन रहा है. सो दिस इज द फर्स्ट न्यूरॉन एंड दिस इज द सेकंड न्यूरॉन. सो here axon of the one neuron is terminating on the axon of the other neuron. This is exoaxonal synapse and it is mainly seen in the spinal cord, right? Fourth type is dendrodendritic. This type of synapse is very rare. बहुत कम जगह पे ये हमें मिलता है, रेयरेस्ट फॉर्म ऑफ साइनेप्स है.
तो यहाँ पे क्लियर है, डेंड्राइट्स ऑफ बोथ दी सेल्स आर टर्मिनेटिंग ओवर वन अनदर। ठीक है, तो इसके भी डेंड्राइट्स इसके साथ कनेक्शन बनाएंगे। तो दिस वुड बी योर डेंड्रोडेंड्राइटिक सिनैप्स, and this is only seen in the olfactory bulb. So this is only seen in the olfactory bulb. It is the rare form of the anatomical type of synapse, right? So let's move to the chemical classification. Physiological classification. तो physiological classification में हमने दो पढ़े थे, chemical synapse पढ़े थे और हमने पढ़ा था electrical synapse। अब देखते हैं फर्क क्या है। जो हमारा केमिकल साइनेप्स है, यहाँ पे जो ट्रांसमिशन हो रही है फ्रॉम प्री टू पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, यहाँ पे हो रही है बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, कोई ना कोई केमिकल एजेंट जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं वो रिलीज हो रहा है, जिसकी वजह से प्री टू पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में ट्रांसमिशन। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस है, यहाँ पे इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, एंड यहाँ पे जो ट्रांसमिशन होती है दैट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस। वोल्टेज ग्रेडियंट बनता है, वोल्टेज के चैनल्स ओपन होते हैं, आयंस की मूवमेंट होती है और ट्रांसमिशन होती है। गैप जंक्शंस आर रिस्पॉन्सिबल। जो हमारा केमिकल सिनैप्स है ये कॉमन है, मोस्टली इनको ही देखा जाता है, मोस्टली सीन इन ऑल दी सिनैप्टिक जंक्शन। और यहाँ पे जो ट्रांसमिशन हो रही है दैट ट्रांसमिशन इज यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में ट्रांसमिशन होती है। प्री सिनैप्टिक से पोस्ट सिनैप्टिक में ही ट्रांसमिशन होगी, क्योंकि जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो यहाँ पे बीच में ही रिलीज होगा। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे रिवर्स नहीं जाएगा। न्यूरोट्रांसमीटर विल बी रिलीज फ्रॉम द प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन, so only transmission here will be unidirectional, that is from presynaptic neuron to the postsynaptic neuron। अब जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिनैप्सेस है ये कई कई जगह पे देखे जा सकते हैं, जैसे कि वेस्टिबुलर न्यूक्लियस में, हिप्पोकैम्पस में, जहाँ पे हमारी मेमोरी कंसर्न है वहां पे देखे जा सकते हैं। और यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन है दैट इज इन बोथ वेज, ऊपर से नीचे, प्री से पोस्ट, पोस्ट से प्री, दोनों तरफ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की ट्रांसमिशन होती है। जो हमारे केमिकल साइनेप्स है यहाँ पे दो न्यूरॉन्स के बीच में एक गैप होता है that is known as synaptic cleft. It is present in the chemical synapse, but here no such synaptic cleft is present. Synaptic cleft नहीं होता यहाँ पे हमारे पास गैप जंक्शंस होते हैं in the electrical synapse। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास केमिकल साइनेप्सिस में साइनेप्टिक डिले होता है, मतलब इंफॉर्मेशन को फर्स्ट न्यूरॉन से सेकेंड न्यूरॉन तक आने में कुछ टाइम लग जाता है, कुछ वक्त लग जाता है। वो वक्त लगता है बिकॉज ऑफ ऑल दी steps taking place here, like release of neurotransmitter, release of calcium ions, binding of calcium ions with receptors। तो ये इन चीजों में जितना टाइम लगता है that is known as synaptic delay। So it is present in the chemical type of synapses, but in electrical synapses no synaptic delay is present। ठीक है, यहाँ पे गैप जंक्शन से डायरेक्टली आयंस की मूवमेंट हो जाती है, कोई साइनेप्टिक डिले यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता। जो हमारे केमिकल साइनेप्सेस है दे आर सेंसिटिव टू हाइपोक्सिया, बट दीज आर नॉट। इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस आर नॉट सेंसिटिव टू हाइपोक्सिया। ठीक है, दीज साइनेप्सेस, केमिकल साइनेप्सेस allows large number of synapses per neuron। ठीक है, एक न्यूरॉन के ऊपर कई सारे सिनैप्स हो सकते हैं। तो ये मेनली हमें हेल्प करते हैं लर्निंग में, मेमोरी में, जहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी सिग्नल्स की ट्रांसमिशन करनी पड़ती है। बट जो हमारे इलेक्ट्रिकल साइनेप्स हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा साइनेप्टिक कनेक्शन नहीं होते, ज्यादा साइनेप्टिक कनेक्शन नहीं होते। यहाँ पे जो हमारी ट्रांसमिशन है वो रैपिड होती है और बहुत ज्यादा एफिशिएंट होती है। So this is the difference between your chemical synapse and the electrical synapse. This is the physiological signification। और जो हमारे कॉमन है वो हमारे केमिकल साइनेप्सेस है। ठीक है, एंड ये बेसिकली लर्निंग, मेमोरी, इन जगह पे हमारे यूज होते हैं।
So this was the classification of synapse. Now let's talk about the structure of the synapse. Synapse का structure क्या होता है? अब जो synapse के structure में हमारे पास जो चीजें involved हैं, सबसे पहले हमारे पास एक है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है, जो न्यूरॉन मैसेज दे के आ रही है, दैट इज योर प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन. जो न्यूरॉन मैसेज रिसीव कर रही है, दैट इज योर पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन. तो दूसरी न्यूरॉन हमारी है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन. अब ये जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, इसके पास कुछ चीजें हैं. दिस इज नोन, वन इज साइनेप्टिक नोड, ठीक है. पोस्ट प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का जो एक्सॉन बल्ब है, उसको साइनेप्टिक नोब कहा जाता है या साइनेप्टिक बल्ब बोला जाता है, ठीक है. प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के पास न्यूरोट्रांसमीटर कंटेनिंग वेसिकल्स होते हैं, which are known as synaptic vesicles, right? फिर जो part of the presynaptic neuron is involved in the synapse, is involved in the transmission of signal, that part is known as presynaptic membrane. पूरा nerve तो participate नहीं करेगा ना. nerve का जो part, presynaptic neuron का जो part synapse में involved है, उस part को हम बोलते हैं presynaptic membrane, right? उसके बाद प्री साइनेप्टिक वाले स्ट्रक्चर्स खत्म हुए, फिर हमारे पास गैप आ जाता है, दैट गैप इज नोन एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट. साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोला जाता है. देन वी स्टार्ट विद द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन. पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में भी क्या आएगा? सबसे पहले पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन आएगी. पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन विल हियर. सो दिस इज द मेम्ब्रेन, the part of the postsynaptic neuron which is taking part in the synapse. इस postsynaptic neuron के पास receptors present होते हैं for this particular neurotransmitter which is present in the synaptic vesicle. So we have the receptors present. So this is the structure of synapse basically. Let us understand it better with the help of a diagram. So if we draw a diagram like this, okay, and this is your now the part of the membrane which is taking part in the synapse. Suppose ये इतना part हमारा involved है in the synapse. So this is your pre-synaptic membrane. Pre-synaptic membrane, ठीक है. और यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट इन्वॉल्व है इन साइनेप्टिक ट्रांसमिशन, जिसके ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है. सो दिस इज योर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है. ये हमारी क्या है? ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, और ये हमारी पोस्ट साइनेप्टिक. जो पार्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं साइनेप्स में, दैट इज प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन रिस्पेक्टिवली. नेक्स्ट, इन द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, द एक्सॉन ऑफ द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स, हमारे पास छोटे छोटे ऐसे वेसिकल्स हैं विच कंटेन द न्यूरोट्रांसमीटर, जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है, and this is known as synaptic vesicles. इनको synaptic vesicles बोला जाता है. साथ ही साथ हमारे पास प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं. So we have mitochondria in this axon bulb. Mitochondria ये भी प्रेजेंट. Then पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में हमारे पास क्या प्रेजेंट है? We have these receptors present. पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर हमारे पास receptors present है which will bind with the neurotransmitter, जो न्यूरोट्रांसमीटर के साथ बाइंड करते हैं, ठीक है. और ये जो डिप्रेशन है, ये जो गैप है, दिस इज दी साइनेप्टिक क्लेफ्ट. इसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोला जाता है. यहाँ पे हमारे पास enzymes present है, and the most common neurotransmitter we use here is acetylcholine, जो ज्यादातर यूज होता है साइनेप्सिस में. So we have the enzyme present here in the synaptic cleft, that is acetylcholine esterase.
बाद में एसिटाइलकोलिन को डिसोशिएट करके भेज देता है वापस इन द सिनेप्टिक न्यूरॉन फॉर इट्स रिसाइक्लिंग. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द साइनैप्स. अगर आपको साइनैप्स का क्वेश्चन आता है, यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम. बहुत सिंपल है. ये एक्सॉन बल्ब है जिसको हम साइनैप्टिक नॉब बोलते हैं. साइनैप्टिक नॉब प्रेजेंट होती है. दिस इज द पार्ट ऑफ योर प्री-सिनेप्टिक न्यूरॉन. उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं. दिस इज योर प्री-सिनेप्टिक मेम्ब्रेन. देन वी हैव सिनेप्टिक क्लेफ्ट जिसके अंदर एंजाइम्स एसिटाइलकोलिन एस्टरेज. देन वी हैव पोस्ट-सिनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट-सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जिसके ऊपर रिसेप्टर्स अटैच. अब स्टेप्स क्या क्या है एक साइनैप्टिक ट्रांसमिशन में, क्या क्या स्टेप्स हैं, ध्यान से हम देखते हैं. सबसे पहला हमारा पहला स्टेप क्या होगा, ऊपर से प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के पास फ्रॉम द सेल बॉडी ऑफ द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन नंबर 1 वुड बी एक्शन पोटेंशियल. ठीक है, ऊपर से एक्शन पोटेंशियल आ रहा है इन द एक्सॉन बल्ब और इन द सिनेप्स. सेकंड स्टेप क्या होगा, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आएगा देयर विल बी रिलीज ऑफ द कैल्शियम आयंस. कैल्शियम आयंस रिलीज हो जाएंगे इन द सिनेप्टिक नोड. जैसे ही कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे, third step would be these neurotransmitters will fuse to the presynaptic membrane. So third step would be fusion of these neurotransmitters with the presynaptic. जैसे ही neurotransmitters sorry, not the neurotransmitters, synaptic vesicles. Fusion of the synaptic vesicles with the presynaptic membrane. जैसे ही synaptic vesicles presynaptic membrane के साथ fuse होंगे, there will be release of the neurotransmitter. Black dots से हम neurotransmitter बना लेते हैं. This would be the fourth step. There would be release of neurotransmitter. Fifth step क्या होगा, जैसे ही neurotransmitter release होंगे, this neurotransmitter will bind to the receptors present on the postsynaptic membrane. जैसे ही postsynaptic membrane के साथ bind होंगे, neurotransmitter receptor bind होगा, there will be generation of action potential in the postsynaptic membrane by the opening of voltage gated channels. Voltage gated channels basically sodium channels हमारे open हो जाएंगे. There will be opening of the voltage gated sodium channels and there will be generation of action potential and hence our synaptic transmission is complete. अब action potential generate हो गया postsynaptic membrane में. So last step would be withdrawal of the neurotransmitter. जैसे ही जनरेट हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर का विड्रॉल होगा. एसिटाइलकोलिन एस्टरेज विल डिसोशिएट इनटू एसिटाइल प्लस कोलिन और ये एसिटाइल प्लस कोलिन वापस चला जाएगा सिनेप्टिक वेसिकल्स में फॉर रिसाइक्लिंग फॉर इट्स नेक्स्ट यूज. सो दिस वाज योर सिनेप्टिक ट्रांसमिशन. चलो अगर हम इसको फ्लो चार्ट में देखें तो क्या हो रहा है हमारे साथ पास, सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल आ रहा है इन दी प्री सिनेप्टिक, राइट. एक्शन पोटेंशियल इन प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में आएगा एक्शन पोटेंशियल. सेकंड स्टेप क्या होगा, देयर विल बी ओपनिंग ऑफ द कैल्शियम चैनल. कैल्शियम चैनल्स हमारे ओपन हो जाएंगे. रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस होगा. Release of calcium ions. Then we will have fusion of this synaptic vesicles. Fusion of synaptic vesicles होगा with the presynaptic membrane. Presynaptic membrane के साथ fuse हो जाएगा. ठीक है. Then we will have release of neurotransmitter in the synaptic cleft. Synaptic cleft में there will be release of neurotransmitter. अब ये जो सारे इवेंट्स हो रहे थे ये कहाँ हो रहे थे, प्री सिनेप्टिक पार्ट. ठीक है. अब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर ऑन द receptors with the receptors in the postsynaptic membrane. वहाँ पे बाइंड हुआ. Then there will be opening of voltage gated sodium channels. Voltage gated sodium channels open हो जाएंगे and there will be generation of action potential.
एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। ये इवेंट्स हमारे हो रहे हैं इन दी पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। नाउ व्हाट वी हैव, अब हमारा साइनेप्टिक ट्रांसमिशन हो चुका है। नाउ वी विल हैव, अब क्या होगा, देयर विल बी विड्रॉल ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर। हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है वो विड्रॉ हो जाएगा फ्रॉम दी साइनेप्टिक क्लेफ्ट, वो रिमूव हो जाएगा। जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर एंजाइम्स थे वो इसको ब्रेक कर देंगे इनटू एसिटाइल प्लस कोलिन में, एंड दिस विल अगेन गो फॉर द रिसाइक्लिंग। वापस से ये साइनेप्टिक वेसिकल्स में चला जाएगा। सो दिस वाज योर साइनेप्स एंड द साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। तो एक समराइज कर लेते हैं, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, इसकी डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है, फिर हमने इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी, दैट इज योर एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, वो हमने पढ़ा। फिर हमने इसके स्ट्रक्चर को पढ़ा, डायग्राम देखा, एंड फाइनली दी इवेंट्स अकरिंग एट द सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको आ सकता है एग्जाम में डेफिनेटली। तो डेफिनेशन आएगी, आपने डेफिनेशन लिखनी है, उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है विद डायग्राम, और इसके इवेंट्स आएंगे। सो बेटर टू ड्रॉ दी फ्लो चार्ट। थ्योरी लिखते हो अच्छी बात है, फ्लो चार्ट को मिस नहीं करना, डेफिनेटली ड्रॉ दी फ्लो चार्ट एंड यू विल फेच गुड मार्क्स। So I hope we are clear with this topic. Synapse easy है. Now in the next videos we will be studying about EPSP and IPSP. Synaptic potentials के बारे में पढ़ेंगे, and later on we will do the properties of synapse. So with this we come to an end of today's lecture. Synapse हमारा complete हो गया. I hope you are clear with this topic. If you have any doubts, you can comment me in the comment section below. And इसके अलावा if you are interested to watch the videos of any other topic of CNS, so kindly comment in the comment section. Till then, like, share and subscribe my channel. Thank you so much.